Good morning, students. So this is the lecture 10 of metals and non-metals. As per in the last video, we are discussing about the chemical properties of non-metal, right? So when we are discussing the chemical properties, then I have discussed with you that metals can react with how it will react with chlorine or with the other elements, right? So there are few more chemical properties. The next one is as we have learned that metals show displacement reaction, same non-metal also show displacement reaction. Okay, what happen, a reaction is given in front of you. You can see a sodium bromide. It is an aqueous solution of sodium bromide. Okay, it is an aqueous solution of sodium bromide. So when this sodium bromide react with chlorine, okay, now chlorine is more reactive than that of bromine. Okay, bromide से chloride is more reactive because when we see group 17 हमारे पास होता है fluorine, chlorine, bromine, iodine. So it is there that fluorine is most reactive among them, then chlorine, then bromine, then iodine. So chlorine at is lying above from bromine, so it is considered to be reactive element. So if it is a reactive element, so what will happen, it will displace bromine because it is more reactive. So जैसे reactivity series में हम करते थे, ये non metal में भी कुछ ऐसे ही होगा that it will displace bromine and form a new product that is sodium chloride, and Br जो है in the form of bromine it will be removed. Okay, displacement reaction it is not that much important in non metals, but सिर्फ हम as chemical properties हम discuss कर रहे थे non metals की, तो that's why I've discussed you that sometimes non-metal also show some of the non-metals, some specific reactions are there in which they can show displacement reaction also, right? Now the next one, the reaction with hydrogen. So when non-metal, so see sulfur is a non-metal, okay, and oxygen is a non-metal, although hydrogen is also a non-metal, but what is there when we have to compare hydrogen and sulfur, then I will say that sulfur is a non-metal and hydrogen little bit behaving as a positive ion here. ओके, ये एक नेगेटिव आयन और ये एक पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको तुम मेन नॉन मेटल मानोगे, ठीक है हेयर. सो व्हेन दीज रिएक्ट देन इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2S, दैट इज हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन सल्फाइड. ओके, H2S गैस बनती है यहाँ पे. एंड व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये तो आपको पता ही है, मोस्टली आपको पता है दैट इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. सो दीज आर द व्हाट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ non-metal. Here these are finished. Now we are having the next topic, that is ionic compound. Okay, so when we talk about ionic compound, हमने ये थोड़ा सा आपने कहीं सुना भी होगा. तो ionic compound सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ionic compound क्या होते हैं. कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस होता है, ठीक है. सो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, इन दैट व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. Okay, in ionic compound there is a complete transfer of electron. Means I have an example for you. Okay, जैसे कि हम बात करें कि सोडियम है, okay, और क्लोराइड है. सो यहाँ पे सोडियम इज हैविंग electronic configuration 281 and chloride is having electronic configuration that is 287. So chlorine, that chloride ion, that need only one electron to get stable, and sodium to get stable to complete its octet इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा और क्लोराइड को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं वो शेयरिंग नहीं बनती. मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा मोस्टली इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना, हमने ये पढ़ा है आपने 9th में. बट यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू इफ इट विल गिव इट्स वन इलेक्ट्रॉन, देन इसके पास 2 8 रह जाएंगे, देन इट विल बिकम लाइक नियॉन, बिकॉज नियॉन इज व्हाट 2 8 है ना. सो ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है. सो व्हाट विल हैपन, ये अपना इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इट विल ट्रांसफर टू क्लोरीन. Okay, and chlorine will have 288 instead of 287. Okay, so chlorine will have the electronic configuration that will like argon. Okay, argon की तरह इसकी electronic configuration होगी, that is also a noble gas. So for that there should be a transfer of electron. Whenever in
two atoms there is a transfer of electron take place, then that bond is not considered to be a कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग के एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, जो उसमें एक बॉन्ड बना उसको कोवलेंट बॉन्ड माना जाता है. बट हियर ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन को, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ आयनिक बॉन्ड. एंड वो जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, वेन एवर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल, यू कैन से, okay, from one atom to another atom, then one atom will wear positive charge. Why it will wear positive charge? मैंने आपको ये समझाया है, whenever any element give electron, then assume that it is giving a chocolate, so that will appear as a positive person. So here a positive charge, how many chocolate it will give? That much positive charge. So here it give 1 chocolate, so 1 positive charge. It gain 1 chocolate, so it will have negative charge. So based on that, when there is a transfer of electron from a metal towards a non-metal or from a one atom to another, then the atom which donate electron will wear positive charge, and the atom which gain electron that will wear negative charge. Okay, so that bond that is formed by transfer of electron, it could be 1, 2 more, so that bond is known as ionic bond, and those compounds जिनमें ionic bond होता है those are known as ionic compounds. Okay, now I am going to talk about the physical properties of ionic compound. So when we talk about the physical properties of ionic compound, the first physical property of ionic compound is that they are solid and hard. आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक बॉन्ड होता है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड. ओके, नाउ इफ इट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, देन हाउ इट इज़ फॉर्म्ड? इट इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको ब्रेक करना, मतलब उसमें ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होगा. इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक, देन डेफिनेटली उसका जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी सॉलिड और हार्ड होगा. अगर वो सॉफ्ट होता दैट मीन्स इट कैन बी ब्रेक्ड ईजिली, बट इफ़ इट इज़ हार्ड डेफिनेटली इट कुड नॉट बी ब्रेक्ड. सो द फिजिकल नेचर कैसा है आयनिक कंपाउंड का? दिस विल बी सॉलिड एंड हार्ड. रीज़न? बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट इन इट. Okay, next, melting and boiling point. Now what is the melting point? When the solid changes into liquid, the point, the temperature at which it will change, that is known as melting point. Okay, whenever a solid we are having, okay, that change into liquid, तो किस टेम्परेचर पे वो चेंज होता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज अ मेल्टिंग पॉइंट. नाउ व्हाट आई हैव रिटन हियर, दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट. हु? आयनिक कंपाउंड. व्हाई आयनिक कंपाउंड विल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? Could you think? क्यों होगा? सो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे? दैट क्योंकि दे आर कंटेन आयनिक बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ब्रेक करना भी क्या होगा? डिफ़िकल्ट होगा. सो उसको टेम्परेचर भी तो ज़्यादा चाहिए. मोर टेम्परेचर मोर मेल्टिंग पॉइंट. सेम फॉर बॉइलिंग पॉइंट. जब वो मेल्ट हो गया, वो लिक्विड बन गया, अब लिक्विड से क्या बनेगा? गैस बनेगा. सो उसके लिए क्या आएगा? बॉइलिंग पॉइंट आएगा. सो अब फिर से इंटरेक्शन स्ट्रांग होंगी. सो दैट्स वाई व्हाट विल बी देयर? द बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो बी हाई. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट वन है सॉल्युबिलिटी. सो कहते हैं आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्युबिलिटी की बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम बात कर लें क्लोरोफॉर्म, ठीक है, बेंजीन. ये कुछ ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिनमें क्या होती है? चार्ज डेवलपमेंट नहीं होती. ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता इनमें. ओके, ड्यू टू द लैक ऑफ द चार्ज डेवलपमेंट नहीं है इसमें. इसकी वजह से क्या है, ये जो है, मतलब एक हमेशा बात याद रखना, जब भी सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? मिक्सअप होना. ठीक है, मिक्सअप होना, सॉल्युबल होना. अब सॉल्युबिलिटी के लिए एक बात हमेशा याद रखना, मैं यहाँ लिखती हूँ, लाइक डिजॉल्व लाइक. हमेशा इस बात को याद रखना, लाइक डिजॉल्व लाइक. जैसे कि मोस्टली आपने देखा है कि हम उसी को फ्रेंड बनाते हैं, है ना? आप बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, यू यूजली मेक फ्रेंड्स टू दोज हु आर हैविंग द बिहेवियर लाइक यू, हु वांट्स टू enjoy the activities which actually you enjoy, right?
सो यू कैन से लाइक डिजॉल्व लाइक मीन्स तुम उसके साथ मिक्सअप होते हो विच इज़ लाइक यू. ना ionic compound we know that whenever a ionic bond is formed, that is formed by a charge development is there, that is a positive and a negative charge, right? क्यों आया? क्योंकि ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का. नाउ इफ इट विल हैव अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन वी कैन से, अब मैंने क्या बोला, लाइक डिजॉल्व लाइक. अब ये किस में डिजॉल्व होगा? जिसमें चार्जेस बनने के चांसेस होंगे. अब चार्ज किस में बनता है? वाटर में बनता है. यस कैसे? वाटर जो है, वाटर विल ब्रेक डाउन इनटू व्हाट? वाटर किस में ब्रेक डाउन होता है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है ना. सो इफ वाटर विल डिजॉल्व लाइक H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इट इज ऑल्सो हैविंग चार्ज, सो लाइक डिजॉल्व लाइक. ठीक है, तो ये नेगेटिव जो है इट विल कंबाइन विद दिस विल कंबाइन विद दिस वन, ये इसके साथ सराउंडेड हो जाएगा, इसको ये आयन सराउंड कर लेंगे एंड ड्यू टू विच सॉलिबिलिटी बन जाएगी, मतलब ये पानी में घुल जाएगा. ठीक है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, व्हाट हैपन, जब मैं क्लोरोफॉर्म या बेंजीन की बात करती हूँ, ठीक है, तो इनमें ये पोलैरिटी नहीं होती. पोलैरिटी मतलब चार्ज डेवलपमेंट नहीं होती यहाँ पे. ठीक है, अब चार्ज नहीं होंगे इनमें, इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं. न्यूट्रल समझते हो? मतलब इक्वल होंगे, जैसे कार्बन कार्बन का बॉन्ड है. ठीक है, तो जितना चार्ज इसके ऊपर है उतना ही चार्ज इसके ऊपर है, कोई डिफरेंस नहीं होगा. सो उन केसेस में क्या है, इन दोज केसेस, अब लाइक डिजॉल्व लाइक है तो इसमें तो चार्ज है, तो ये उसी में प्रेफर करेगा टू बिकम सॉल्युबल जिसमें चार्जेस हैं, इंस्टेड ऑफ टू गेट सॉल्युबल इन दिस वन. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, okay, which are made from chemicals and soluble in water. Okay, so the last point, conduction of electricity. Now ionic compounds are good conductor of electricity, but in solid state does not conduct. Why? अब करंट क्यों पास होता है? जब आयंस फ्लो करते हैं. ठीक है, आयंस जब फ्लो करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है कुछ लास्ट वीडियोस में, तो तभी करंट पास होगा, राइट. सो अब अगर वो सॉलिड है, ठीक है, अब कोई चीज़ सॉलिड है तो उसमें जो एटम्स होंगे वो टाइटली पैक होंगे. ठीक है, लाइक दिस. अब इसमें जो एटम्स होंगे दे आर टाइटली पैक. If the atoms are tightly packed, so in this case if you want to transfer the electron, you can't transfer. Okay, but when they are in molten state, मतलब उसको मेल्ट हो गया वो, ठीक है, तो उसका लिक्विड बन गया. सो इन दोज केसेस क्योंकि आइंस फ्लो कर सकते हैं, सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आयनिक कंपाउंड, क्योंकि बच्चे गलतियां कर देते हैं, इन सॉलिड स्टेट डज नॉट कंडक्ट बिकॉज पैकिंग बहुत स्ट्रांग होगी, आइंस का फ्लो नहीं हो पाएगा, बट इन मोल्टन स्टेट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ वी आर हैविंग फ्यू structures of ionic compound. Sometime you can get in exam that make the electron dot structure of ionic compound. Now how we will make, we am going to discuss with you. So you can see this is our next topic. देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा. पहले मैंने आपको नॉन मेटल्स की क्या पढ़ाई, केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं. देन वी हैव डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. अब लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड. अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तब देखिए, समटाइम्स यू कैन गेट दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू. यू कैन सी, मैंने ये पीछे भी बनाया था, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड होता है. ठीक है, कैसे पता चला हमें, देखिए सोडियम व्हाट इज़ देयर, मैं आपको डिटेल में ये समझाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. When I will write the electronic configuration of sodium, it is 281 and chloride that will be 287. So it need one electron so that it could be like argon. Argon is 288. If it will lose one electron, it will be like neon, which is 28. So it want to lose one electron, it wants to gain electron. So here what will be the transfer of electron? You have to show this in exam that there will be a transfer of electron. देखिए फुल एरो बनाया मैंने और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया. अब इसने एक चॉकलेट दी, इट विल वेयर पॉजिटिव, एंड यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी ज़रूर लिखनी है. क्या रहेगी, 28. ओके, एंड व्हाट अबाउट क्लोरीन, इसकी क्या बनेगी
288, ठीक है जी। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैंने क्या शो किया, नेगेटिव चार्ज. व्हाट दिस नेगेटिव रिप्रेजेंट मीन्स इट गेन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी अदर एटम. सो इट गेन फ्रॉम सोडियम, सो दैट्स वाई इसके ऊपर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन जो एक इसके पास एक्स्ट्रा है, दैट्स वाई इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ NaCl. Now you can see the next structure I have made, that is of magnesium chloride, magnesium dichloride. Okay, so you can see magnesium will have electronic configuration 282, right? So if magnesium will lose its 2 electron, because it is really difficult for magnesium to gain 6 electron, so in that case, so instead of gaining 6 electron, lose its 2 electron, so that it will become like neon. So अब ये 2 electron जब दे देगा, so एक electron it will goes to chlorine and the second electron go to this chloride, and then it will have magnesium plus 2 chloride. देखिए मैंने यहाँ पे कितना नेगेटिव रखा, एक, क्यों? क्योंकि क्लोराइड की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऊपर भी तो हमने लिखी थी 287, तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी कितने चाहिए, एक ही चाहिए, ठीक है. सो फॉर ईच क्लोराइड इट इज़ -1. डोंट राइट लाइक दिस, ऐसी गलती नहीं करनी, क्लोराइड 2 नेगेटिव. It represent that one chloride gain 2 electron, but it is not possible, then it will become 289, जो कि नहीं है, ठीक है, it will be wrong. So देखिए मैंने ऊपर 1 negative लिखा है, and with the square bracket I have used 2 symbol here because it represent that 2 chloride ions are present here. Okay, so this is the electron dot of magnesium chloride. Now next I am having sodium sulfide, Na2S. So when you will see Na2S, what is there? One sodium. Okay, we are having one sodium that is having a electron. Okay, again same thing जो यही थी वही बार बार 281. So it is also having 281. It will wants to lose one electron. When you will see sulfur, so sulfur is having 286, ठीक है, is having 16 atomic number, so its electron will be 286. So it need how many electron to get stable? 2. So 2 electron will be here. So accordingly, see अब मैंने 2 यहाँ भी देखिए कहाँ रखा, here. Okay, because one sodium is having 1 positive, so accordingly 2 sodium are each with 1 positive, ठीक है, and sulfur के ऊपर negative. How much negative will be there? देखो यहाँ पे ज़रा कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसने 2 किए, तो यहाँ पे देखो ये गलती है, यहाँ पे एक नेगेटिव नहीं 2 नेगेटिव आएगा. ओके, सो दिस इज फॉर सल्फर, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, देखिए ये सेपरेटली शो किए हुए हैं. सो इट हैज़ गेन 2 इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? सो लाइक दिस आपको किसी की भी इलेक्ट्रॉन डॉट बनानी आ सकती है, तो उसके लिए यू मस्ट नो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. यू मस्ट नो कि अगर उसको स्टेबल होना है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, बिकॉज इट विल जस्ट डिपेंड ऑन व्हाट. कैसे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा हमारे पास इसी कंसेप्ट के बेस पे कि उसका जो नोबल गैस की तरफ वो मूव करेगा, ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. थैंक यू वेरी मच बच्चे. होप सो you will cooperate. Make the notes side by side, then only you can learn. Okay, thank you very much.